Hello everyone, welcome to our video of training session, and this is our company name is Valme Pipe Private Limited and आप ज्वाइनिंग के लिए आए हैं तो आपके लिए ट्रेनिंग सेशन है. In the training session we would learn about what the company is, what are the about factor and what are the price. हम अभी इस ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे प्राइसिंग, about the company, what are the products and services we provide, a little bit more about our company. Let's start with about the company. Our company name is Valme Pipe Private Limited. You also came to know about the company as a Valme Pipes only. Firstly, about the company. Founder of the company is Harsh Gupta sir and Mrs. Kavita Gupta. Okay. Our company has two main functions, which were manufacturing and supply of PVC products. हमारी कंपनी की दो मेन फंक्शन है. फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड वन इज सप्लाई. फॉर दिस आवर कंपनी gathers some raw materials from the well-known brands such as Reliance, Shriram, these are the two main companies which gave us raw materials. Our company was founded in July 1994. Okay, our company is a private limited firm. This is the about for the company, and now we will head start with our brands. In the products we would learn about, we have 30 plus variety of our products which were in PVC. In 30 plus you can say that differs in size, color, length, weight and many other categories. Every company had some kind of products which were most selling. हर कंपनी के पास होता है कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा जो मोस्टली सेलिंग होता है. हमारी कंपनी का भी है मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट which is known as PVC conduit pipes, also known as electric pipes, also known as बिजली वाली. Used in electrical fittings,
अब मैंने बताया कि ये पाइप्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के अंदर यूज होती है, तो ये पाइप्स उन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के अंदर यूज होती है जो हम लोग हाउस होल्ड और मोस्टली जो डोमेस्टिकल लगा लीजिए, इंडस्ट्रियल लगा लीजिए, और मोस्टली काफी अदर फील्ड जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इनसाइड द वॉल्स, लेंटर्स एंड अदर थिंग्स, इन चीजों के अंदर इनसाइडल फिटिंग्स होती हैं, उन चीजों के अंदर ये यूज में आती हैं। कई कई जगह इन्हें ओपन फिटिंग्स के अंदर भी लगाया जाता है, सच लाइक वेयर हाउसेज एंड मेनी अदर थिंग्स। ओके, नाउ वी केम टू other products. Second most selling product, or the product which is mostly manufactured by our company, caping, casing. These are the products also known as bead and batten. Caping, casing, फट्टी, ये भी कई डिफरेंट साइजेस में बनती है। ऑल्सो ये ओपन फिटिंग्स के अंदर यूज होती है मोस्टली, एंड इनके बारे में भी और जानेंगे आगे। आफ्टर दैट जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आते हैं, अगर हम पाइप बनाते हैं तो हम पीवीसी बेंड्स भी बनाते हैं, जो एक लंबी पाइप को एक डायरेक्शन चेंज में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट देयर कम्स अदर प्रोडक्ट्स which helps in fitting, such as cable clips, double nail clamps, junction boxes, deep junction boxes, GI fan boxes, round sheet, fan sheet, and many others. Okay, and while moving forward for others, और चीजों के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले हम अपने जो पीवीसी के पाइप्स हैं इनके अंदर हमने हमारे पास काफी ज्यादा वैरायटीज है, तो हमने हर एक पाइप को एक अलग ब्रांडिंग नेम से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास हाउसिंग ऑफ ब्रांड्स, अब हर कंपनी होती है उसके पास एक अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, which differs in quality, quantity and many other things. So हमारे पास जो हम ब्रांड्स को डिफरेंशिएट करते हैं हमारे, वो 4 पेयर्स में या फिर 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। The first and the premium category which we have, which is Primex. Second one is less premium but the quality which everyone loves, Wire Shield. After that, a third quality, Coastal X, and the fourth and the last quality, Thunder Pipes. Okay, these 4 quality differ in, these 4 name differ in only quality. ठीक है, Primex, the Primex is a product which is 95% pure,
Wire shield is a product with 85% purity. Costorex is a product with 75% purity, and Thunder pipes are a product which have purity of 70 to 50 accordingly to the demand of customer. Got it? 95% लिख रखा है। 95% का मतलब इसके अंदर 5 किलो मिट्टी मिलाई जाती है, और मिट्टी आप उस मिट्टी को नहीं कह रहे जो आप अपने घर के बाहर देख रहे हो। मिट्टी है, मिट्टी सच लाइक जब हम पीवीसी को हार्ड करते हैं, टू हार्ड पीवीसी वी नीड सम प्रोडक्ट्स सच एज द इम्प्योरिटीज। हम उन्हें इम्प्योरिटीज ही कह सकते हैं बिकॉज द नेम इज केमिकली इन द केमिस्ट्री व्हेन यू गो उसके नाम काफी बड़े हो जाते हैं। देन हम यूज करते हैं प्योरिटी ऑल्सो नोन एज रेजिन। जो हमारी पीवीसी के अंदर प्योरिटी जो यूज होती है उसे रेजिन कहते हैं। तो जब पीवीसी को हार्ड किया जाता है वो हार्ड होती है विद द हेल्प ऑफ रेजिन प्लस इम्प्योरिटी। और अब इम्प्योरिटी है तो इम्प्योरिटी को मिट्टी कहना कौन सी गलत बात है। देन ये वो माल है जिसमें 5 किलो मिट्टी होती है। इन अ बैच ऑफ 100 kg ये 5 किलो मिट्टी वाला माल है, ये 15 किलो मिट्टी वाला माल है, और ये 25 किलो मिट्टी वाला माल है। इस माल के अंदर 50% से 30% से 50% तक मिट्टी होती है। ठीक है। अब भाई इसके अंदर इतनी इम्प्योरिटी है लगभग 50% तक, फिर भी ये पाइप हमारा ISI अप्रूव्ड है। जो भी प्रोडक्ट हमारे थंडर के होते हैं वो मोस्टली ISI अप्रूव्ड होते हैं। आफ्टर दैट व्हेन कम्स टू कोस्टारेक्स, कोस्टारेक्स के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ISI अप्रूव्ड, ISO अप्रूव्ड, और इसके अंदर 45 डिग्री तक बेंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट इसके अंदर जब 75% प्योरिटी है या फिर 25 किलो मिट्टी है तो ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा कैपेबल नहीं है, बट ये होल्ड आउट कर लेता है। आफ्टर दैट आते हैं हम अपने वायर शील्ड के ऊपर। तो वायर शील्ड का जो भी प्रोडक्ट है हमारा वो 85% प्योर, 15 kg मिट्टी होती है उसके अंदर, वो प्लायर टेस्टेड होता है, उसके ऊपर प्लास से जल्दी से कोई इफेक्ट नहीं होता, वो 100 kg तक का वेट बियर कर सकता है, यानी कि उसके ऊपर 100 किलो तक का वजन रख देंगे तो वो मुड़ जरूर जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। फिर आते हैं उसके नेक्स्ट क्वालिटी के ऊपर, नेक्स्ट फीचर के ऊपर। वो नेक्स्ट फीचर है कि वो प्रोडक्ट फायर रेजिस्टेंट है। एक 180 डिग्री तक की बेंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद -35 डिग्री तक का टेम्परेचर जिसके ऊपर वो खराब नहीं होगा। -35 डिग्री तक का टेम्परेचर वो बियर कर सकता है। अब हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री माइनस इस टेम्परेचर तक को झेल सकता है। 50 से कम, 40 से ज्यादा। समझ गए। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वालिटी जिसे हम प्राइमेक्स कहते हैं। अब प्राइमेक्स के बारे में बताऊं तो ये इसकी सारी क्वालिटीज को बियर करता है। इसके साथ ये शॉक रेजिस्टेंट, बिजली नहीं लगेगी, 300 किलो तक का वेट बियर कर सकता है, -45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है,
घूम फिर के फिर आए इसके ऊपर, ये 360 डिग्री की रोटेशन ले सकते हैं, यानी कि इस पाइप को हम बिल्कुल यूं गोल मोड़ करके और वापस हाथ में पकड़ सकते हैं। अगर हमें उसका 10 फीट का पाइप जो भी है हमारे पास, उस 10 फीट को पाइप को यहाँ पे लगा करके और घुमा करके वापस वहीं लगाना पड़ गया तो हम लगा सकते हैं। अगर हमारी केसिंग केपिंग को थोड़ा सा बेंड करना पड़ गया, अगर मान लीजिए ये बोर्ड स्ट्रेट है बट अगर ये थोड़ा सा आगे की तरफ बल जाउट होता तो ये केपिंग केसिंग वहां तक जा सकती थी। ठीक है, इसके अलावा हैमर टेस्टेड है ये, प्लास टेस्टेड है ये। ठीक है, ये आ गया हम क्वालिटीज के ऊपर। अब हम बात करते हैं हमारे प्राइम प्रोडक्ट किसके बारे में, पाइप्स के बारे में। अब पाइप्स के अंदर हमारे पास जो ब्रांड्स आते हैं वो चारों के चारों ब्रांड्स यही है। ठीक है, अब इनके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम पीवीसी पीवीसी कॉन्ड्यूट पाइप्स के बारे में। अब पीवीसी कॉन्ड्यूट पाइप्स को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस पे इसके अंदर कितने प्रोडक्शन हो सकते हैं, कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इसके अंदर है 4 प्रोडक्ट्स, प्राइमैक्स, वाईशील्ड, कोस्टोरेक्स, थंडर पाइप्स। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ साइज। साइज के ऊपर बात करें तो इसके अंदर 3 मेन साइजेस होते हैं। पहला इज 3/4 इंच यानी पौना इंची, 1 इंची और 1.25 इंची। अब ये तो हो गया लोकल नेमिंग। अब इनके स्टैंडर्ड नेमिंग के ऊपर आते हैं तो वो हो जाते हैं 19 mm, 20 mm, 1 इंची में आता है 25 mm, पौना 1.25 इंची के अंदर आता है 32 mm। ये बात होगी इनके साइज के ऊपर, यानी कि इन पाइप के डायमीटर के ऊपर। समझ गए, साइज को आप डायमीटर भी कह सकते हो, डायमीटर ऑफ पाइप। अब आते हैं इसे कैटेगराइज करने के तीसरे फैक्टर के ऊपर, ऑल्सो नोन एज थिकनेस। एक पाइप की जो कॉन्ड्यूट पाइप होते हैं इनके अंदर मोस्टली 4 टाइप में थिकनेसेस होती हैं। पहली जो थिकनेस 0.5 mm की होती है, एक थिकनेस जो 1 mm की होती है, एक थिकनेस जो 1.5 mm की होती है, एक थिकनेस जो 2 mm की होती है। अब मार्केट में जाएंगे, हर थिकनेस का एक अलग नाम होता है, हर थिकनेस का एक अलग काम होता है। इस थिकनेस पे आते हैं, इस थिकनेस को बोलते हैं LLS, जिसे फुल फॉर्म बताऊं तो फुल फॉर्म होती है लाइट
मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब आते हैं 1 mm पे, इसे बोलते हैं MMS, ऑल्सो नोन एज मीडियम मैकेनिकल स्ट्रेस, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। 1.5 mm को बोलते हैं HMS, ऑल्सो नोन एज हैवी मैकेनिकल स्ट्रेस, और 2 mm को बोलते हैं SMS। SMS वो वाले SMS नहीं, SMS सुपर हैवी मैकेनिकल स्ट्रेस। समझ गए? अब मैंने हर पाइप का नाम बता दिया आपको। प्राइमेक्स, अब एक पाइप होगा, उस पाइप का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ कि भाई वेल्मे का पाइप है, किसी और कंपनी का पाइप है। तो जो वेल्मे का पाइप होगा ना, उसके ऊपर वेल्मे का लोगो मिलेगा, ठीक है, उसके ब्रांड का नाम मिलेगा, उसका जो साइज है वो लिखा हुआ मिलेगा इन द स्टैंडर्ड वन, ठीक है। उसके ऊपर इसका एक कलर होता है, कलर कोड, इस चीज का जो थिकनेस होती है उसके लिए इसका एक कलर कोड बनता है, वो कलर कोड होगा। सच लाइक जब भी आप वेल्मे पाइप का LMS खरीदोगे, वो जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उस पे वो रेड कलर से लिखा होगा। समझ गए? फिर आती है बारी MMS की। जो MMS है उसके ऊपर जितना भी मटेरियल लिखा होगा ब्लू कलर में लिखा होगा, कंपनी के लोगों से लेकर के बाकी सारी चीजों पे, ठीक है। HMS पे आएंगे तो वो पाएगा इन द ग्रीन कलर। समझ गए? और फिर वापिस आए, वापिस आने के बाद देखें भाई एक SMS बच गया, तो वो SMS आता है ब्लैक कलर में। ये डिफरेंशिएशन समझ आ गई? अब इसी डिफरेंशिएशन में मैं आपको और अच्छे से ब्रीफली बता दूं, ये और ये, इन दोनों पाइपों का यूज हो सकता है ओपन फिटिंग में। इन दोनों पाइपों को लोग यूज करते हैं लाइट लेंटर्स में। और कैसे, और कहने को कह दो तो हल्के लेंटर जो भाई 1 या 2 मंजिला ऊंची इमारत है उसके अंदर यूज करते हैं। और जब किसी को चाहिए कि हाँ मेरी छत में बढ़िया ही पाइप डले, तो उसके अंदर यूज होता है ग्रीन एंड ब्लैक, यानी कि HMS और SMS हैवी लेंटर्स के लिए। Make sure you should note everything down. और अब आती है बारी कीपिंग केसिंग्स की। तो कीपिंग केसिंग्स स्टार्ट हो जाते हैं फ्रॉम 3/4 इंच, 1 इंच, 1.25 इंचेस, 1.5 इंचेस और 2 इंचेस, ठीक है। 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच और 1.25 इंच, ठीक है। 1.25 इंच के अंदर जो वेरिएंट होता है उसे बोलते हैं 20/12, ठीक है। फिर आता है 1.25 इंच, 25/16, ठीक है। उसके बाद आता है 1.25 इंच, इसके अंदर हमारे पास 2 वेरिएंट है, 30/15 और 32/16, ठीक है।
फिर आती है बारी 1.5 इंच की, जिसके अंदर हमारे पास जो वेरिएंट है उस वेरिएंट का नाम है 40x20। उसके बाद आती है जो 2 इंची वाला वेरिएंट है, उसका आता है 50x20। कैटेगरी ऑफ प्राइमेक्स, जो प्राइमेक्स की कैटेगरी है, इस प्राइमेक्स के अंदर जो वेरिएंट्स हम मोस्टली बनाते हैं या फिर जो हमारे पास मोस्टली मैन्युफैक्चर होते हैं वो वेरिएंट्स होते हैं। जैसे मैं कह रहा था, हमारे पास केपिंग केसिंग के अंदर 2 क्वालिटीज है। फर्स्ट वन इज प्राइमेक्स, सेकंड वन इज वायर शील्ड। और जो इनकी प्राइसिंग लगती है वो प्राइसिंग बोथ हैंड की तरफ से लगती है। जो प्राइस आपने पाइप्स का पढ़ेंगे वही प्राइस यहाँ पे आपको केपिंग केसिंग का लगेगा। ठीक है, चलो केपिंग केसिंग के टॉपिक को बंद करते हैं। अब आते हैं हमारे अदर प्रोडक्ट्स में आते हैं। अब अदर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मैं अपना पहला प्रोडक्ट बताता हूं, विच इज सर्कुलर केबल, सर्कुलर केबल क्लिप्स, विच आर एज सर्कुलर केबल क्लिप्स होती है। एक क्लिप, जैसे वायर जा रहा है तो वायर, खुला वायर है उसे रोकने के लिए, पाइप है उसे रोकने के लिए, या फिर केसिंग की फट्टी है उस केसिंग की फट्टी को रोकने के लिए केसिंग की फट्टी को दीवार पे लगाए रखने के लिए, ओपन फिटिंग में, क्लोज फिटिंग के अंदर, ताकि पाइप हिले ना, बार बार वो टूट के ना गिर जाए। उस वजह से, क्योंकि पाइप की लेंथ लंबी होती है, ऑन दैट बेसिस केबल क्लिप्स लगाए जाते हैं, जो इसके ऊपर यूं लग करके, और उसके अंदर नेल होती है जिसे हिट करके दीवार के अंदर चला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो एक होल्ड बना लेता है। तो वो भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होती है। द साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 4 mm, फिर आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 40 एंड 50। उसके बाद एक होती है केबल क्लिप अलग नेम से, नोन एज बी फ्लैट, बी ओवल और बी राउंड। ठीक है, अब ये तो होगी केबल क्लिप्स। अब जब हम बड़े पाइप्स को लगाएंगे तो सिंगल नेल से वो होल्ड नहीं हो पाती। आफ्टर दैट उस टाइम पे आती है डबल नेल। डबल नेल के लिए नेम चेंज होके सर्कुलर केबल क्लिप का नेम चेंज होकर के हो जाता है डबल नेल क्लैंप्स। इनके साइजेस 25 mm, 20 mm, 19 mm, 32 mm, 50 mm, 40 mm, ये इन साइजेस के अंदर होती है। डबल नेल क्लैंप समझ ही गए होंगे, ये पाइप है, सिंगल नेल इसे होल्ड नहीं कर पाएगी, तो ये डबल नेल के साथ आता है। इन दोनों नेल को दीवार के अंदर चला दिया, अब ये पाइप यहाँ पे होल्ड पे रहेगा, इससे ज्यादा ग्रिप मिलती है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास जो हमारे प्रोडक्ट्स में और भी हैं, जंक्शन बॉक्स। ये भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब इनके 3 कैटेगराइजेशन है, इनके अंदर 2 कैटेगराइजेशन है। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के अंदर देखें तो ये होते हैं 19 mm का, 25 mm का, 19 mm का, 20 mm का, 25 mm का और 32 mm का।
अब ये 3 साइजेस के अंदर इसकी कैटेगराइजेशन होगी। अब इसकी जंक्शन है तो एक जंक्शन तो नहीं होता होगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेज ये कितने रास्तों में भटक जाता है, उन रास्तों के ऊपर। सच लाइक चौराया देखा होगा 4 रास्ते हो जाते हैं, तिराया देखा होगा 3 रास्ते हो जाते हैं, रोड होती है 2 रास्ते होते हैं। उसी तरीके से जंक्शन बॉक्स के अंदर आता है 2 वे, 3 वे और 4 वे। 2 वे, 3 वे, 4 वे का मतलब है एक जंक्शन बॉक्स लगाया जाता है उन जगहों पे जहां पे हमें कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग देनी हो, लाइट्स लगानी हो या फिर कोई और अदर मोटिव से। तो इसके अंदर ये 4 साइजेस है और जो ये वेज है ये 3-4 कुछ वेज होते हैं इसके। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डीप जंक्शन बॉक्स, DEEP, डीप जंक्शन बॉक्स। अब जो डीप जंक्शन बॉक्स है वो भी सिमिलर ही है, 4 साइजेस वही 19 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm। वेज के अंदर आओ तो वही वेज, 1 वे, 2 वे, 3 वे और 4 वे। उसके बाद अदर प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एज यूजुअल क्लाइंट जब पूछेगा उस टाइम पे आप हमारी जो रेट लिस्ट है उसके अंदर चेक करके बता सकते हैं। फिर आती है बारी कि भाई प्राइसिंग के रिगार्डिंग हमारी प्राइसिंग रिलेट करती है रेजिन की प्राइसिंग से। ऑल्सो हमारा रॉ मटेरियल। एंड फर्स्ट एंड लास्ट थिंग कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस अगर अप होगा तो हमारे पीवीसी पाइप्स हैं उनका भी अप होगा, केबल क्लिप्स हैं उनका भी अप होगा, और जो बचा कुचा प्रोडक्ट है सच लाइक बैंड्स और अदर थिंग्स उनका भी प्राइस अप होगा। तो इसके अंदर जो हमारे बेस प्राइसेस हैं वो होते हैं हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग। द मेन प्राइसिंग जो हमें मेन प्राइसिंग है जो हमें ध्यान रखनी है वो है पीवीसी कंडक्ट पाइप्स की। सेकेंड वन इज पीवीसी केपिंग केसिंग की। और पीवीसी बेड्स की। तो कंडक्ट पाइप्स के अंदर आते हैं हम। अब कंडक्ट पाइप्स के अंदर हम प्राइमेक्स कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। तो प्राइमेक्स कैटेगरी का जो रेट चल रहा है वो चलता है 120 रुपीज केजी। वायशील जो कैटेगरी होती है उसका वेट होता है 100 रुपीज केजी। जो कोस्टर एक्स है उसका वेट होता है 90 रुपीज केजी। और उसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी आती है, लास्ट कैटेगरी, उसका होता है 80 रुपीज केजी। अब मैंने रेट किलो के हिसाब से बता दिया, तो अब बात आ गई कि भाई अब हम ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके अंदर कि सर उस बंदे को 50 पाइप चाहिए तो मैं किलो के हिसाब से कैसे दूंगा। तो इस चीज का एक सोल्यूशन या फिर एक ये लगा लो एकमात्र सोल्यूशन, डिग्रीज जो डिवाइड की थी स्टार्टिंग में, याद हो आपको, LMS, MMS, HMS, SMS, इन सभी कैटेगरीज का एक फिक्स वेट होता है अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो। LMS की कैटेगरी है, वो LMS की कैटेगरी का वेट होता है 8.5 kg।
एमएमएस की कैटेगरी होती है, उसका वेट होता है 10.5 kg। एचएमएस है, उसकी कैटेगरी का वेट होता है 12.5 kg। एसएमएस आती है, उसकी कैटेगरी का वेट होता है 15.5 kg। ठीक है, अब ये 3-4 मैंने वेट बता दिए। अब पाइप का जो साइज, एक पाइप क्या तो किसी फिक्स ब्रांड का होगा, एक पाइप एक फिक्स ब्रांड का होगा, ठीक है। अब ब्रांड का हो गया, उसके बाद एक फिक्स साइज का होगा, उसके बाद वो एक फिक्स कैटेगरी में आएगा, डिवाइडेड इन इट्स थिकनेस। एक जो भी एक सच लाइक लगा लो, एक पाइप है, एक पाइप होगा, ये लगा लो एक पाइप है। अगर ये पाइप है, ये प्राइमेक्स का हो सकता है, वाईशील्ड का हो सकता है, कोस्टारेक्स का हो सकता है, या फिर थंडर का भी हो सकता है, ठीक है। ये 19 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, इन चारों में से भी एक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और कैटेगरी आती है उसकी थिकनेस पे, कि कस्टमर को उसकी थिकनेस क्या चाहिए। वो थिकनेस होती है ये LMS 0.75, MMS 1.0, HMS 1.5 और SMS 2 mm, ठीक है। अब SMS का जो पाइप है वो 15.5 kg का है, रेट निकालना होगा। 1 kg का रेट 120 है, एक बंडल के अंदर 12.5 किलो माल आएगा, 12.5 किलो का रेट हो जाएगा कितना, रेट ऑफ ए बंडल ऑफ प्राइमेक्स LMS 19 या फिर 19 mm, ठीक है। क्या रेट हो जाएगा, प्राइमेक्स का 120 का रेट है किलो का, LMS का होता है 8.5 kg, ठीक है। जो आंसर आएगा वो होगा प्राइस ऑफ बंडल। समझ गए, ठीक है। सिमिलरली रेट आएगा केपिंग केसिंग्स का, केपिंग केसिंग्स का रेट भी इसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। केपिंग केसिंग्स के रेट के लिए भी आपको अलग से नहीं करना, केपिंग केसिंग्स के हर बंडल का एक अलग फैक्टर होता है, ठीक है। हर एक बंडल वो 1.25 इंच का है, 1 इंच का है, 1.25 का है, 1.5 का है या 2 का है। हर एक बंडल एक डिफरेंट साइज को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊं तो हर एक बंडल का एक अलग वेट होता है, ठीक है। आप जिसे कह सकते हो कि जो आपका 20 आप जैसे ये बता देता हूँ वापिस, 20/12, 25/16, 30/15, 32/16, 40/20, 50/20, जो आपका 1.25 इंची का बंडल होता है वो 38 किलो का 36 किलो का होता है। जो 1 इंची का बंडल होता है वो होता है आपका 1 इंची का लगभग 28 किलो के आसपास का होता है, 28 से 26 किलो का। जो 1.25 इंची का पाइप आता है, 1.25 इंची की केपिंग केसिंग आती है, उसका वेट होता है 30 kg, ठीक है। फिर जब आते हैं हम भाई
1.5 इंची या फिर 2 इंची, आप कहने को आओ तो 1.5 इंची 2 इंची का वेट होता है 33 किलो और 35 किलो। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर नंबर ऑफ पीसेज आते हैं। अब आप कह सकते हो जो आपका 1/4 इंची होता है इसमें 200 पीस आते हैं, जबकि 1 इंची होता है उसके अंदर 100 पीस ही आते हैं। 1.25 इंची में भी 100 पीस होते हैं, और जो 1.25 इंची के दोनों कैटेगरी के अंदर 100 पीस ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं हम 1.5 इंची की, उसमें 70 पीस होते हैं, और 2 इंची के अंदर 50 पीस होते हैं। ठीक है, वही पाइपों की बात करें तो 19 mm का कोई भी बंडल हो और 20 mm का कोई भी बंडल हो, दोनों के अंदर 40 पीस होते हैं। 25 mm का कोई भी बंडल हो उसके अंदर 25 पीस ही होते हैं। 32 mm का कोई भी बंडल हो उसके अंदर 15 पीस ही होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? बाकी प्राइसिंग प्राइस लिस्ट के हिसाब से होती है, बाकी प्राइसिंग को आपको याद करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जब आप यहाँ आएंगे ऑफिस के अंदर, मैं आपको प्राइस लिस्ट और अच्छे से बता दूंगा, कितना डिस्काउंट आपको कस्टमर को देना है, कितना डिस्काउंट कस्टमर अगर मांगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप क्या दे सकते हो, वो सब आपको ऑफिस में आने के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, अब पाइप जो भी कोई सामान होता है, आजकल लोग वाउचर्स कूपन्स आजकल ये सब देते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं गिफ्ट वाउचर्स और कूपन्स के ऊपर। तो गिफ्ट वाउचर्स जब हम वायर शील्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो हमारी वायर शील्ड कैटेगरी के अंदर जो गिफ्ट वाउचर्स और जो कूपन्स है वो स्टार्ट करते हैं 10 रुपए का कूपन, गोज अप टू 30 रुपए का कूपन। 30 रुपए का कूपन। वायर शील्ड की पाइप और केपिंग केसिंग, इनके अंदर जो कूपन आते हैं वो 10 रुपए का और 30 रुपए का कूपन आता है। ठीक है, इसके अंदर 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक का आपको रिवॉर्ड मिलता है अगर आप एक बंडल खरीदते हैं, या फिर आपका जो कस्टमर वो एक बंडल खरीदता है, तो बंडल को जब वो खोलेगा तो उसकी पैकेजिंग के अंदर से उसे 10 रुपए से लेके 30 रुपए तक का गिफ्ट वाउचर निकलता है। बाकी की डिटेल्स आपको ऑफिस में मिलेंगी। फिर प्राइमेक्स आता है, गिफ्ट वाउचर मिलता है एक बंडल के अंदर। ठीक है, वहीं जब हम बात करें अदर की, जैसे कोस्टारेक्स हो गया, थंडर हो गया, इनके अंदर फिलहाल कोई भी कूपन्स नहीं है। ठीक है, और कितनी बातें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब जो प्राइस हम कस्टमर को दे रहे हैं तो उसमें हम कस्टमर को क्या क्या दे रहे हैं। सच लाइक कस्टमर ने कहा कि मेरे को एक एस्टिमेटेड प्राइस बता दो जी। ठीक है, हमने XYZ एक एस्टिमेटेड प्राइस बता दिया कस्टमर को। ठीक है, तो उस एक एस्टिमेटेड प्राइस के अंदर हम कस्टमर को दे क्या रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं हम, सच लाइक मैंने X प्राइस दिया, तो उस X प्राइस के अंदर कस्टमर का 18% GST वो भी इंक्लूडेड, FOR, और या फिर कह सकते हो इंक्लूडेड। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग, और आप कह सकते हो ऐसी पैकेजिंग जो बाकी मार्केट के अंदर इतनी नहीं है। ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी इन प्राइस रेंज, उस रेंज के अंदर उस प्राइस के अंदर आपको हमारी जैसी क्वालिटी नहीं मिल सकती।
gift vouchers. 3 डे मैन्युफैक्चरिंग, 3 दिन के अंदर आपका माल तैयार होके हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें से रवाना हो जाएगा। ठीक है। ऑफरिंग गिफ्ट्स ऑन टारगेट कंप्लीशन। जब अगर टारगेट कंप्लीट कर लेता है कोई बंदा, टारगेट कंप्लीट यानी कोई बंदा होलसेलर हो, डीलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर कोई रिटेलर हो, अगर रिटेलर हमारे साथ जुड़ के अगर वो चाहे कि भाई मैं एक 50 लाख रुपए का एक टारगेट लेके चलता हूं, ये 50 लाख रुपए का वो टारगेट लेके चल रहा है, ठीक है, और वो उसे पूरा कर देता है, यानी कि वो हमारा 50 लाख का माल बिकवा देता है, ठीक है। तो उस 50 लाख के टारगेट के ऊपर उस कस्टमर को हम 1% CD कस्टमर डिस्काउंट और बाकी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो आप अगर एक बार हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर या फिर हमारे एक रिटेलर बन जाते हैं तो आपको मिलते हैं। सच लाइक हमारा पर्सनलाइज किया हुआ आपके लिए एक बैनर लगा लीजिए, बोर्ड लगा लीजिए, एक सैंपल बोर्ड आ जाएगा आपके पास जिसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स लगे हुए आपको मिलेंगे। लेकिन वो चीजें हैं टारगेट कंप्लीशन के ऊपर। एक बार आप टारगेट कंप्लीट करेंगे फिर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इन सभी चीजों के अंदर एक वर्ड है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आप ऑफिस में आने के बाद पता कर लीजिए। पाइप बता दिए, केपिंग केसिंग बता दी, अदर प्रोडक्ट बता दिए, सब कुछ बता दिया। तब कस्टमर जब पूछेगा कि भाई कम से कम आप कितना माल दे सकते हो, जब इसकी बात आएगी तो हमें क्या करना है, तो हमें क्लाइंट को एक वर्ड बोलना है MOQ। MOQ स्टैंड फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, विच मीन्स जो सबसे कम अमाउंट का सामान, जो सबसे कम सामान जो वो मंगवा सकता है वो क्या है। तो अगर वो पाइप्स ओनली में जाता है तो पाइप्स ओनली के अंदर तो पाइप्स आते हैं बंडल के अंदर। तो अगर बंडल देखे जाए तो वो कम से कम स्टार्टिंग फ्रॉम 80 बंडल्स टू 120 बंडल्स उसे मंगवाने होते हैं। 80 से 120 बंडल। अब आप लोग देखोगे, आप लोग देख के बोलोगे कि सर 80 बंडल थोड़े थोड़ा होते हैं, एक बंडल के अंदर इतने पाइप आते हैं, एक बंडल के अंदर उतने पाइप आते हैं। वट एवर द कॉस्ट इज, जब आप अगर एक सेलर हो, आप अगर सेल कर रहे हो कोई चीज, तो देन आपको पता है कि ना ये पाइप्स 120 बंडल 130 बंडल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जब बेचने पे आ गया तो इतने पाइप्स अपने आप चले जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आता है कि भाई अगर वो मिक्स में मंगवाते हैं तो मिक्स ऑर्डर के अंदर टोटल ऑर्डर की वेट होना चाहिए वो 1000 kg प्लस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस में बात करें तो 1.5 लाख रुपए तक का ऑर्डर होना चाहिए, 1.5 कह रहा 1.25 लाख तक का, 1.25 लाख से 3 लाख तक का, ये एक उसके अंदर आता है। अगर भाई कोई बंदा कहे कि मेरे को मीटर के हिसाब से पाइप चाहिए तो कम से कम 5 किलोमीटर पाइप,
अगर वो भाई ये छोटे मोटे सामान जैसे राउंड शीट, जो हमारा जितना भी अदर मटेरियल का सामान है, अदर प्रोडक्ट्स का सामान है, वो सारा का सारा सामान अगर वो कहते हैं कि मुझे वो भी चाहिए, तो मिनिमम ऑर्डर मैंने आपको बता दिया 1 से 1.5 लाख पीसीस के अंदर आता है। तो पीसीस के अंदर अलग से ही वो लगा लो, कई के अंदर 4000 पीसीस आते हैं, कई के अंदर 2100 पीसीस आते हैं। ठीक है, ये है हमारा एमओक्यू। तो अब एमओक्यू खत्म हुआ है, सारी चीजें खत्म होगी। अब आप पूछोगे कि सर फिर सेल्स का टारगेट होता है, सेल्स में काम करते हैं तो यहां भी कोई टारगेट है? भाई टारगेट कुछ नहीं है, बस एक सैलरी जस्टिफिकेशन पॉइंट है, जिसे हम टारगेट ही कह देते हैं। एक सैलरी जस्टिफिकेशन बार या फिर सैलरी जस्टिफिकेशन पॉइंट, वो होता है मिनिमम 3 सेल। ओके, अदरवाइज अदरवाइज आप करते हो तो कम से कम आपका 4.5 लाख तक का माल बिकना चाहिए आपके थ्रू। ये है आपकी जो भी सैलरी XYZ, जो भी सैलरी आपको बताई गई है एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू। जब आपके इंटरव्यू के टाइम के ऊपर ये सैलरी आपको बताई गई है कि भाई आपकी सैलरी है, मान लीजिए आपको 10,000 बताई गई है, मान लो आपको 20,000 बताई गई है, मान लो आपको 50,000 बताई गई है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी जस्टिफिकेशन पॉइंट पे आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट ये होके चलता है। लेकिन फर्स्ट मंथ में हम आपको देते हैं फ्रीडम टू लर्न, मीन टू से आप सीखो, बस एक सेल निकाल लो। जैसे भी डाटा रहेगा अनफिल्टर्ड अनफ्रेश डाटा, पुराना डाटा, आपने किसी नंबर पे कॉल की, देयर वाज 25% चांसेस कि वो कॉल आपके राइट क्लाइंट को लगे और वो क्लाइंट आपकी सुने। इन 25% में से 75% वो होंगे जो बंदे आपको मना कर देंगे, जो बंदे कह देंगे कि सर हम डील नहीं करते, वो फोन कट कर देंगे। हाँ, वो लोन वगैरह वालों की तरह नहीं है यहाँ पे कि भाई आपका फोन कट भी करेंगे और फिर आपको गाली भी निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ के अंदर आपको मिनिमम 1 सेल 2 सेल ये निकालनी है। बट आफ्टर दैट आपका जो एक फिक्स सैलरी जस्टिफिकेशन पॉइंट या बार बनता है, वो बनता है 4.5 लाख रुपए तक का आपका माल बिकना चाहिए 1 महीने में, और 3 सेल कम से कम निकलनी चाहिए आपकी। ठीक है, यह आपका टारगेट हो गया। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। जो क्वेश्चन आंसर आपसे क्या ना क्या तो क्या कभी आपका क्लाइंट पूछ लेगा। ठीक है, अगर क्लाइंट ने भी नहीं पूछा तो आप ये लगा लीजिए कि वो क्वेश्चन आंसर आपसे आपका भाई जो आपने किसी से डील कर रहे हो, तो डील के बीच में कोई बंदा आपसे कोई एक आधा क्वेश्चन आंसर पूछ ले जो आप जिस जगह अटक जाओ, तो अभी वो चलेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज बेसिक क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पोस्ट कर। तो पहला क्वेश्चन आता है, वो पूछ ले आपसे कि आपके पास कितनी क्वालिटी है। तो सर हमारे पास है 3 क्वालिटी बेसिकली, प्राइमेक्स, सेकेंड वन इज थर्ड वन इज
ये 3 है हमारी बेसिक। दिस वन इज द प्रीमियम वन विद 95% प्योरिटी, 5 किलो मिट्टी वाला माल। ठीक है, ये 85% प्योरिटी विद 15% kg ऑफ मिट्टी। ठीक है, आफ्टर दैट 75% विद 25 kg। ठीक है, अब रही सही भाई ये तो है, अब हम एक चीज और दे रहे हैं ना इसमें, थंडर। एक थंडर नाम का प्रोडक्ट भी है ना हमारे पास, 70 से 50% की प्योरिटी, 30 से 50 किलो मिट्टी की मिक्सिंग वाला। अब रही सही बात इन चीजों के ऊपर आ गई। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि आपके पास ये चलो 4 क्वालिटी है, इनमें से आप केपिंग केसिंग्स पाइप्स कितने में देते हो? तो पाइप हमारे पास तीनों चारों क्वालिटी के अंदर है। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमारे पास सिर्फ इन दोनों के अंदर ही केपिंग केसिंग्स है। ठीक है, केपिंग केसिंग सिर्फ इन दो में बनती है, इनके अलावा किसी में केपिंग केसिंग नहीं बनती। समझ गए? बैंड भी इन दोनों में ही बनते हैं, उसके अलावा कोस्टर एक्स में तो बैंड भी नहीं बनाते हम। आगे इनकी प्योरिटी, कितने किलो की मिट्टी की मिक्सिंग होती है, क्या होता है, आगे समझ में? ये होगा बेसिक क्वेश्चन 1। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन कि भाई एक पाइप की लेंथ कितनी होती है? तो एक पाइप की लेंथ होती है 3 मीटर, और देसी के अंदर बोले तो 10 फीट। ठीक है, अब ये तो पाइप की लेंथ आ गई। उसके बाद पूछ ले कि भाई केपिंग केसिंग की क्या लेंथ होती है? ठीक है, केपिंग केसिंग का क्या होता है, 2 मीटर की लेंथ, 6 से 6.5 फीट अप्रोक्स। ठीक है, आ गए समझ? ये इनकी लेंथ होती है। फिर आप पूछोगे कि भाई बंडल के अंदर कैसे वेट होता है? जो बताया था उन्हीं का रिकैप है कि भाई आपसे पूछ ले कि जी बंडल कैसे, वेट कैसे बनाते हो? तो जी एलएमएस होता है, उसके अंदर आता है जी 8.5 किलो माल। एमएमएस होता है, उसके अंदर होता है जी 10.5 किलो माल। एचएमएस होता है, एसएमएस होता है, उसके अंदर 15.5 kg आता है। ठीक है जी, उसके बाद आता है कि बंडल के अंदर पीस कैसे डिसाइड होते हैं सर? तो पीस डिसाइड होते हैं 1 इंची, ठीक है, हमारे पास 2 पौना इंची के, एक 1 इंची का और एक 1.25 इंची का है। साइज क्या थे? 1 पौना इंची वाला 19 mm कहलाता है, एक 20 mm कहलाता है, 1 इंची वाला 25 mm कहलाता है, 1.25 इंची वाला 32 mm कहलाता है। ठीक है, 19 mm का जो भी पाइप होगा उसका वेट, उसके अंदर 40 पीसेस आएंगे। ठीक है, चाहे वो बंडल एलएमएस का हो, एमएमएस का हो, एचएमएस का हो, एसएमएस का हो, हर पीस के अंदर 40, हर मतलब बंडल के अंदर 19 mm के हर बंडल के अंदर 40 पीस आएंगे। सिमिलरली 40 पीस आएंगे
20 mm के अंदर, ठीक है। अगर रही से ही देखोगे तो 1 इंची होता है 25 mm, तो 25 mm का जो पाइप होता है उसके अंदर 25 पीस आएंगे, ठीक है। फिर आता है 32 mm, 32 mm के हर एक बंडल के अंदर 15 पीस आएंगे, वट एवर द बंडल वेट इज, ठीक है। अगर कोई पाइप जिसके अंदर लिख दिया कि भाई हाँ ये पाइप है, तो इस पाइप के अंदर बंडल कितने का बनेगा, ये 1.25 इंची का पाइप है जी, तो 1.25 इंची का पाइप है जी, कुछ भी कर लो, उसके अंदर 40 पीस आएंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भाई एलएमएस का पाइप, एलएमएस का बंडल है सर ये, तो इसमें कितना वेट है, तो जी 8.5 किलो वेट है हमारे वाले में। तो बोले 1.25 इंच का हुआ तो भी 8.5, और भाई 1.25 इंच का हुआ तो भी 8.5, और भाई 1.25 इंच का हुआ तो भी 8.5, ठीक है। आगे समझ में। फिर कि भाई हम कौन कौन से भाई पाइप्स बनाते हैं, तो भाई जो पाइप्स बनाते हैं ना हम, कोस्टरएक्स और थंडर, ठीक है। इसके अंदर हम 25 mm बनाते हैं, सिर्फ 25 mm की पूरी सीरीज, एलएमएस, एमएमएस, एचएमएस, एसएमएस, ठीक है, समझ गए जी। फिर आता है वायर शील्ड, ठीक है। वायर शील्ड के अंदर हम क्या क्या बनाते हैं, वायर शील्ड के अंदर हम बनाते हैं 19 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, ठीक है। 32 mm में हमारा बनता है एचएमएस, हैवी वाला, ठीक है। 25 mm में सब बनता है, एलएमएस, एचएमएस, एमएमएस, एसएमएस, ठीक है। 20 mm आता है, तो 20 mm में हमारा एचएमएस बनाते हैं हम और एसएमएस बनाते हैं हम, ठीक है। 19 mm आ गया, उसमें भी हम एचएमएस बनाते हैं और एसएमएस बनाते हैं, ठीक है। अब प्राइमेक्स भी सेम टू सेम ही है, ठीक है। आ गया, इसे राइट डाउन कर लेना। अब आता है हमारे पास पाइप की भी जो 3 कैटेगरी है अपनी, कोस्टा, 4 लगा दो, 4 कैटेगरी है, कोस्टा, थंडर, प्राइमेक्स, हो हुई थी, ठीक है। ये 4 कैटेगरीज है अपने पास, ठीक है। अब इसमें से आप पूछोगे इसमें कौन कौन से कलर मिलते हैं, इसमें सिर्फ व्हाइट मिलता है, ये भी व्हाइट में कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये 5-6 कलर है जो हम, ये 7 कलर है जो हम मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं इन सब के अंदर, ठीक है। बस इनके लिए एक स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। स्पेशल कंडीशन क्या है कि स्पेशल कंडीशन ये है कि भाई इसके अंदर हमें मिनिमम 400 बंडल चाहिए ऑर्डर के लिए, ठीक है। अगर भाई बंदा 400 बंडल का ऑर्डर भी नहीं दे रहा तो इससे ये है मैक्स पॉसिबल,
ठीक है। अब जो मिनिमम पॉसिबल है वो है 240 बंडल, ठीक है, समझ गए। फिर अब आ जाते हैं कि भाई इनको, ये भी आ गया आपको। अब कस्टमर पूछ ले आपसे कि भाई आपका कौन सा पाइप ऐसा है जो आईएसआई अप्रूव्ड है, आईएसओ अप्रूव्ड है, ये सब है। सभी पाइप आईएसआई, आईएसओ, जैज, ठीक है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जो पाइप है वो हमारे रजिस्टर्ड है। हमारे पास कोई बंदा पूछे कि आपके पास भाई आपके पाइप में ऐसा खास क्या है, हमारे पास 7 सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, 7 सर्टिफिकेट्स है। जिन 7 सर्टिफिकेट्स के अंदर ऑल आर गवर्नमेंट इवन, ठीक है, सारे के सारे गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। पाइप्स आर वेल वेरीफाइड। हमारे पाइपों की टेस्टिंग, और वेरीफाइड दोनों हुए हैं, ठीक है। फिर भाई ये तो भाई हर पाइप वाला ले लेता है, कुछ हो ऑल ओवर नॉर्थ रीजन में, बेस्ट पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर का अवार्ड भी मिला हुआ है हमें। बस सर ये भी मिल जाता है तो जी हमें रवीना टंडन मैम ने दिया है। आप जीटीवी के ऊपर हमारा एक स्पेशल जो इंटरव्यू है वो भी आप देख सकते हैं, जीटीवी जी बिजनेस पे आया हुआ है, ठीक है। जी बिजनेस के ऊपर हमारे सर को अवार्ड दिया गया था बेस्ट पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर इन नॉर्थर्न रीजन, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये बेस्ट पीवीसी पाइप का अवार्ड मिला हुआ है, ये दिया किसने था, ये दिया था ब्रांड एम्पावरमेंट, ठीक है। ब्रांड एम्पावरमेंट करके एक टीम है जो ऑल ओवर इंडिया से जो बेस्ट ब्रांड्स हैं उनकी इंफॉर्मेशंस निकालती है और उनकी इंफॉर्मेशंस के ऊपर उन्हें अवार्ड देती है। तो उनकी तरफ से हमें अवार्ड मिला हुआ है फॉर द बेस्ट पीवीसी कंड्यूट पाइप मैन्युफैक्चरर ऑल ओवर द नॉर्थ रीजन, गिवन बाय रवीना टंडन, समझ गए। कंपनी की स्टार्टिंग कब से हुई थी, सिंस 1994, सिंस 1994, ठीक है। और फिर LMS, MMS, SMS, HMS, ठीक है। अब इनमें से आप पूछोगे दीवार में लगाने वाले कौन से हैं, ठीक है, वॉल फिटिंग के लिए, ठीक है, लाइट लेंटर्स के लिए, ठीक है। अब हैवी लेंटर्स के लिए जो चाहिए वो ये दो है, समझ गए। अब आते हैं प्योरिटी कितनी कितनी है वो भी समझ आ गया।
एक चीज जो हमेशा याद रखनी है, रॉ मटेरियल नेम्ड एज रेजिन। ठीक है, रॉ मटेरियल होता है रेजिन। रेजिन हम किससे खरीदते हैं? हम खरीदते हैं रिलायंस और श्री राम से। ठीक है, श्री राम और रिलायंस ये दो ही कंपनी है इंडिया के अंदर जो बेस्ट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, जिससे बड़ी बड़ी ब्रांड्स तक लेती हैं। ठीक है, अब यहां तक कि हमने इतनी तो बात कर ली, इसमें मोस्टली जिक्र पाइप का ही हुआ। अब हम आगे वापस अपनी केपिंग केसिंग। अब केपिंग केसिंग के अंदर कौन कौन से दो क्वालिटी है जिसमें हम केपिंग केसिंग दे रहे हैं? प्राइमेक्स वायर शील्ड। ठीक है, अब केपिंग केसिंग किस किस साइज में आते हैं? मोस्टली केपिंग केसिंग में आते हैं 0.5 इंची, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची। ठीक है, तो जो 0.5 इंची में आता है साइज जो हम प्राइमेक्स के अंदर देते हैं, वो साइज होता है 20x12। ठीक है, 1 इंची होता है, उसमें होता है 25x16। ठीक है, फिर आता है 32 क्या कहते हैं 1.25 इंची, उसमें होता है 32x16। ठीक है, जो प्राइमेक्स के अंदर अवेलेबल है। ये बीच का कट कर दो भाई। ठीक है, ये आ गया 32x16 जो हम प्राइमेक्स में देते हैं। प्राइमेक्स में कौन कौन से के मिल रहे हैं? 0.5 इंची का, 1 इंची का, 1.25 इंची का, सिर्फ यही मिल रहे हैं। अब बात करते हैं वायर शील्ड की। वायर शील्ड में आते हैं 20x12, 25x16। ठीक है, फिर आता है 30x15, फिर आता है 32x16, फिर आएगा 40x20, फिर आएगा 50x20। ठीक है, जो 20x12 है ये है 0.5 इंची का, 25x16 है ये है 1 इंची का, 30x15 ये है 1.25 इंची का। ठीक है, जो 32x16 है ये भी 1 इंची का है, 1.25 का। ठीक है, फिर जो 40x20 का है ये 1.5 इंची, और 50x20 का है ये 2 इंची। ठीक है, हमारा जो वायर शील्ड है इसके अंदर 0.5 इंची से 2 इंची तक का सारा माल है, और इसके अंदर 0.5 इंची से 1.25 इंची तक का माल है। ठीक है, अब कोई पूछ ले कि भाई आपका सर ये बताइएगा हमें कि जो केपिंग केसिंग आती है वो किस साइज में? साइज तो ये आ गया, कलर बताइए। तो इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टैंडर्डाइज कलर है व्हाइट, सिर्फ वही मिलता है, उसके अलावा कोई कलर हम एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर नहीं करते। ठीक है, उसके बाद आ गया भाई इसमें भाई वेट क्या क्या होता है? तो वेट के लिए 0.5 इंची की जो होती है उसके अंदर हमें मिलता है वेट 36 kg। ठीक है, जो हमारे पास भाई 1 इंची वाला माल होता है, 1 इंची वाले माल के अंदर हमें मिलता है 28 kg, या फिर आप कह सकते हो 26 kg। 1.25 इंची वाला माल है उसके अंदर हमें मिलता है 30 kg। 1.5 इंची वाला माल है और 2 इंची वाला माल है, उसमें मिलता है एक में 33 किलो और एक में 35 किलो। ठीक है, और फिर यही बात करते हैं हम प्राइमेक्स के लिए। तो प्राइमेक्स के अंदर होता है
यही पौना इंची के अंदर प्राइमेक्स के अंदर पौना इंची में मिलता है 38 केजी, 28 केजी और क्या कहते हैं 32 केजी सवा इंच के अंदर। ठीक है, अब पीसीज की बात कर ले कि भाई किस में कितने पीस मिलते हैं, किस में कितने पीस नहीं मिलते। तो भाई जो पौना इंची होता है इसके अंदर आपको मिलते हैं 200 पीस। ठीक है, उसके बाद बारी आती है 1 इंची की, इसके अंदर 100 पीस मिलते हैं। सवा इंची आता है, उसके अंदर 100 पीस मिलते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे भाई 1.5 इंची वाला, इसके अंदर भाई 70 पीस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 2 इंची, उसके अंदर 50 पीस मिलते हैं। समझ गए? अब चलो ये बेसिक क्वेश्चन आंसर हो। अब कई दुकान वाले कई भाई बड़ी फर्म के पास गलती से आपसे कॉल मिल जाए या फिर आपको बड़ी फर्म का डाटा मिल जाए कहीं से, तो बड़ी फर्म वाले क्या करते हैं, वो कभी भी किसी का लिया जो माल उसने ले रखा है वो किसी दूसरी कंपनी को प्रमोट नहीं करते। जैसे कि आप देख लो, एक हैवेल्स है, हैवेल्स को अगर पाइप की जरूरत पड़ेगी तो हैवेल्स क्या हमारे पास मैं यूं कहेगा कि मैं वेलमे के पाइप बेच दूंगा, आप भेज दो, वो कहेगा कि मेरा नाम लिख दो इस पे, आपका वेलमे हटाओ मेरा हैवेल्स लिख दो। पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है मतलब हम कर सकते हैं, जिसका नाम होता है OEM। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कॉपी मेकिंग, या फिर सेकंड ब्रांड नेम लगा के। पाइप हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्वालिटी हमारी है, बट नेम किसका है? किसी और बंदे का। तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो है 400 बंडल्स। ठीक है, 400 बंडल होने चाहिए पाइप के, जब जाके हम आपका नाम पाइप पे लिख देंगे। क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा व्हील्स चेंज होते हैं, डाई चेंज होती है, प्लस आपके लिए जो आपकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है जो आपको चाहिए वो क्वालिटी दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर OEM में ही आता है कलर। तो कलर के लिए स्पेशलाइजेशन है कि 250 बंडल मिनिमम है, आप 250 बंडल बनवा लो, 250 बंडल हम बना देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर एक और आ जाता है कि भाई मुझे पाइप की लेंथ थोड़ी सी बढ़ी हुई चाहिए, पाइप के अंदर मेरे को वजन ज्यादा चाहिए, पाइप की मोटाई ज्यादा चाहिए, हमारे पास उसकी भी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। बस एक चीज 280 to 400 बंडल्स के बीच में ही ऑर्डर होना चाहिए। वन टाइम के लिए एक बार जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो एक बार का ऑर्डर आपका 280 से 400 बंडल का होना चाहिए। ठीक है, फिर OEM के अंदर कुछ फीचर्स फैसिलिटीज होती है जो नहीं मिलती, होते हैं गिफ्ट कूपन। वो गिफ्ट कूपन आपको अपने डालने होते हैं। पैकेजिंग नॉर्मल होती है। ठीक है, कोई फैंसी पैकेजिंग नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जो भी रेट होगा, हम जो आपको रेट दे रहे हैं वो FOR के साथ होता है। FOR डिसाइड होता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ठीक है, ये दोनों सिनेरियो के लिए है। अगर ट्रांसपोर्टेशन वाले अगर हमें 2 रुपए किलो के हिसाब से रेट दे रहे हैं तो हम 2 रुपए किलो ही ऐड करेंगे।
ये नहीं है कि हमने आपसे कहा कि भाई सर 5 रुपए किलो तक का हो सकता है, आपको 5 रुपए बता दिया तो आपको वो उससे ठीक नहीं मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।